Hello students, today we are here with our next lecture of cell, the fundamental unit of life. पिछले वीडियोस में हमने माइक्रो बॉडीज के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्पिरोसोम्स, ग्लाइकोसोम्स एंड पेरोक्सोसोम्स के बारे में डिस्कस कर लिया था. आज के वीडियो में हम एक नए सेल ऑर्गेनल दैट इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं. माइटोकॉन्ड्रिया इज commonly known as powerhouse of the cell. It is known as powerhouse of the cell. Why it is known as powerhouse of the cell? Because it provide energy to the cell for the different metabolic activities performed by cell. जितना भी ATP सिंथेसिस का काम या जो भी एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है वो सारा कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. और माइटोकॉन्ड्रिया से ही ये एनर्जी पूरी सेल में सप्लाई की जाती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इट वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर. कॉलिकर ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था in the flight muscle cells of insects. क्लियर? इंसेक्ट्स की फ्लाइट मसल सेल्स में कॉलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था. नेक्स्टली इसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट नेम से डिनोट किया. The term phyla was given by, now phyla term जो दिया था it was given by Fleming. Next, Altman named the mitochondria as bioplast. Altman ने बताया it is bioplast. He termed the mitochondria as bioplast, and the term mitochondria was given by Benda. Clear? So this is about the discovery of mitochondria. It was firstly discovered by Koliker in the flight muscle cells of the insects. Phyla named was given by Fleming. And bioplast name to the mitochondria was given by Altman, and mitochondria name was given by Benda. Clear? This is the discovery. Now come to the origin of mitochondria. Mitochondria का origination कैसे होता है ये हमें देखना है. और इसके लिए अल्टमान साइंटिस्ट जो थे इन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज की और इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू अल्टमान, mitochondria is originated from, ठीक है, according to Altman it is originated from prokaryotic cells. Clear? इन्होंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोकैरियोटिक सेल से इसका ओरिजिनेशन हुआ है और इट मे बी सिम्बायोटिक इन ओरिजिन. इट इज प्रोकैरियोटिक and symbiotic in origin. Clear? That's why the mitochondria is called as semi-autonomous organelle. ठीक है? क्यों? Suppose इन्होंने क्या बताया? This is a prokaryotic cell. When a small prokaryotic cell gets entered in this cell, suppose this is the another prokaryotic cell which is present inside the another prokaryotic cell. This cell contain its own genetic material because mitochondria has its own circular DNA and ribosomes. Clear? And this is the prokaryotic cell again. This also contain its circular DNA and ribosomes and the cytoplasm. So this prokaryotic cell present inside the another prokaryotic cell, it behaves like a mitochondria. तो धीरे धीरे इसने क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बिहेव करना स्टार्ट किया और माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन परफॉर्म करना शुरू किया. दैट्स व्हाई अल्टमान
said that mitochondria is prokaryotic or symbiotic in nature. क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में कितने प्रेजेंट हो सकते हैं? व्हाट इज इट्स नंबर? द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन ऑफ सेल, विच टाइप ऑफ फंक्शन अ सेल इज परफॉर्म्ड. क्लियर? तो जितने ज्यादा फंक्शन सेल करने वाली होगी उतना ज्यादा वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उतने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज वहां पर होंगे. नॉर्मली 1 माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल. ठीक है, तो 1 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, ये इसका नॉर्मल नंबर है. सो नॉर्मली 1 माइटोकॉन्ड्रिया per cell. For example, in prokaryotic cells like chlorella, it is the algae Chlorella chlamydomonas. These are the organisms which contains 1 mitochondria in their cells, but its number is about 5 lakh in the flight muscle cells of insect. Flight muscle cells of insects, they contain 5 lakh of mitochondria, and about 50,000 mitochondria are present in giant amoeba. ये जेंट अमीबा में हमें ऑलमोस्ट 50,000 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज देखने को मिलते हैं. इसके अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हमें अलग अलग सेल्स में वेरिएबल मिलता है, क्योंकि जिस टाइप का फंक्शन सेल परफॉर्म करेगी उस उतना नंबर माइटोकॉन्ड्रिया का उसके अंदर होगा. ऑलमोस्ट इन द मसल्स ऑफ बर्ड सेल्स, बर्ड्स की जो फीदर्स की मसल्स है, दे कंटेन ऑलमोस्ट अबाउट 5 to 10,000 ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, तो जितना ज्यादा फंक्शन करना है उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए उतना माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सेल के अंदर होगा. नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं. फर्स्टली आई विल ड्रॉ द डायग्राम एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. This is mitochondria. It is the outer membrane. Clear? Outer membrane of mitochondria is containing less protein and more lipids. And this is permeable membrane. क्लियर? ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है. आउटर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की है, इसमें प्रोटीन्स का अमाउंट कम है और लिपिड्स का अमाउंट ज्यादा है, एंड इट इज परमिएबल मेम्ब्रेन. सेकेंडली, जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, इट इज नॉट स्मूथ, इट इज समवॉट फोल्डेड. ठीक है, इस तरह के फोल्ड्स हमें माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं. ये इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है. तो ये जो फोल्ड्स हैं, दीज फोल्ड्स आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन. दिस इज इनर मेम्ब्रेन, एंड दिस इनर मेम्ब्रेन इज containing more protein and less lipids, and it is semi or selectively permeable. ठीक है, जैसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास होती है, इट इज सेमी और सिलेक्टिवली परमेएबल. तो दिस इज अबाउट द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन. नाउ these folds present on the inner membrane are called as crista. Plural form is cristae. Here it is crista, or you can also call as cristae. The space outer और inner membrane के बीच में जो यहाँ पर space present है, this space is called as
आउटर कंपार्टमेंट या आउटर मेम्ब्रेनस स्पेस, तो इसको हम बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट और आउटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्लियर? और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी हम इसे कह सकते हैं। दिस इज आउटर कंपार्टमेंट और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर? इसके बाद यहाँ अंदर जो स्पेस है, इस अंदर वाले स्पेस में हमारे पास प्रेजेंट है मैट्रिक्स। दिस इज द मैट्रिक्स एंड इट इज द इनर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, इसको हम इनर मेम्ब्रेनस स्पेस कहेंगे और जो अंदर जेल भरा हुआ है स्पेस में, दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स कंटेन अ सर्कुलर डीएनए। दिस इज द सर्कुलर डीएनए। Along with the circular DNA, matrix also contain ribosomes. Clear? These are the ribosomes. Clear? तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है and the ribosomes present in the mitochondria are 70S type. Clear? This is the ribosome. On the inner surface of cristae, this stalk-like particles are also present. ठीक है, क्रिस्टी की पूरी मेम्ब्रेन पे, इनर मेम्ब्रेन पे इस तरह के स्टॉक्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट है। These particles are called as F0, F1 particles, or they are also called as oxysomes. And these are the units where the energy gets synthesized. ऑक्सीजोम्स में ही एनर्जी का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो अभी हम इन सब के बारे में डिटेल देखने वाले हैं, क्या क्या चीज यहाँ पर प्रेजेंट है और क्या क्या फंक्शन वो परफॉर्म कर रही है। देन उसके बाद में हम ऑक्सीजोम्स का स्ट्रक्चर डिटेल देखेंगे कि किस तरह से ऑक्सीजोम में एनर्जी का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो फर्स्टली आई विल इरेज द डायग्राम। हम यहाँ पे थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे, किस टाइप का मैट्रिक्स है और क्या क्या चीजें यहाँ पे मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। तो हम फर्स्टली डिस्कस करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। दिस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज रिच इन एंजाइम्स। विच काइंड ऑफ एंजाइम्स? एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्लियर? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उस टाइम पर क्रेब साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में रन करता है और उसके लिए जितने भी एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है, दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सेकेंडली, दिस मैट्रिक्स कंटेन डाइवेलेंट आयंस। Divalent ions like magnesium ion, manganese ion and ferrous ion. These ions are responsible for the activation of enzymes which are participated in the process of respiration. Clear? Nextly, this matrix also contain a circular DNA. मैट्रिक्स में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है और यहाँ पर जो डीएनए प्रेजेंट है, इस डीएनए में साइटोसिन एंड ग्वानिन जो बेस पेयर है, इसका अमाउंट ज्यादा होता है। हमें पता है डीएनए इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, राइबोस शुगर्स एंड फॉस्फोरिक एसिड और द फॉस्फेट ग्रुप। उनमें से जो नाइट्रोजनस बेस है, 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस वर देयर, दैट इज एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। Adenine pairs with thymine with double bond and cytosine pairs with guanine with triple bond.
डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसमें साइटोसिन एंड ग्वानिन जो है इसका अमाउंट, इस बेस पेयर का अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है. दैट्स व्हाई द डीएनए हैज हाई डीनेचुरेशन टेम्परेचर. ठीक है, इसकी वजह से क्या है, इसका हाई डीनेचुरेशन टेम्परेचर. क्लियर. जब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, लेकिन शॉर्टली हम देखते हैं. जब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है तो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है ना, इस टाइप से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमारे पास होता है. और जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है तो बोथ ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए गेट्स डीनेचर्ड. यहां पर बेस पेयर्स होती हैं, साइटोसिन ग्वानिन एंड थायमिन एडेनिन की बेस पेयर्स यहाँ पे लगी हुई होती है. यहाँ पे अमाउंट ज्यादा है साइटोसिन एंड ग्वानिन का. ठीक है, तो यहाँ पे जब डीएनए के स्ट्रैंड्स का अनवाइंडिंग होगा, दोनों स्ट्रैंड्स जब दूसरे से अलग अलग होते हैं और फिर इनका स्ट्रैंड, इनके ऊपर जो इनका अपोजिट स्ट्रैंड है उसका सिंथेसिस होता है, जो हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बाद में डिटेल पढ़ेंगे. यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है साइटोसिन एंड ग्वानिन के अंदर, और मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे साइटोसिन एंड ग्वानिन का बेस पेयर का है, इसलिए इसका जो डीनेचुरेशन टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है. ज्यादा टेम्परेचर देने पे ही ये डीनेचर्ड होंगे या दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के अलग अलग होंगे. नेक्स्टली, दिस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आल्सो कंटेन्स राइबोसोम्स. In the ribosomes of eukaryotic mitochondria, 70S type of ribosomes are there. ठीक है, हमें पता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 80S राइबोसोम्स होते हैं, बट इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल 70S टाइप ऑफ राइबोसोम इज देयर. लेकिन हम यदि मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ. मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया, मैमेलियंस जो मैमल्स की सेल है उनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें हमें जो राइबोसोम देखने को मिलता है दैट इज 55S राइबोसोम. ये राइबोसोम के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स सारी यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, लेकिन यदि हम मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं तो वहां पे प्रेजेंट होगा 55S राइबोसोम. इट ऑल्सो कंटेन इट्स टू सब यूनिट्स दैट इज 38S and 28S. So these are the important points under the mitochondrial matrix. ठीक है, ये सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट है. इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो गया. डीएनए आरएनए के बारे में हमने, डीएनए एंड राइबोसोम्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. आउटर मेम्ब्रेन है, इट इज रिच इन लिपिड्स एंड लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज देयर, एंड इनर मेम्ब्रेन more amount of protein is present and less amount of lipids is there, and it is selectively permeable or semi permeable in nature. Mitochondria has its own DNA and ribosomes. अभी हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम है, so they are called as semi-autonomous organelle because they can replicate and increase their number inside the cell. इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीसोम्स, क्योंकि ऑक्सीसोम्स जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का, जहां पे एनर्जी सिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और उसके बाद में हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्टली द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीसोम. ऑक्सीसोम्स, जिसे हम F0 F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, विच आर प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्रिस्टी. दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. क्लियर, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन. ये है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द क्रिस्टी. Clear? This is the inner membrane of inner membrane.
It means the inner membrane and outer membrane has two phases. This is the outer phase, this is the inner phase. और ये जो क्रिस्टी है ये इसका इनर फेस. क्रिस्टी कहाँ है? इधर की साइड क्या प्रेजेंट है पूरा हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, यहाँ पे ये है मैट्रिक्स. क्लियर? यदि हम इसकी बात करें तो ये जो है इट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्रिस्टी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्रिस्टी. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्रिस्टी. Or it is also called as M phase. Why it is called as M phase? Because it is present towards the mitochondria. ये जो है it is the outer membrane of Christie. Outer membrane of Christie. It is also called as C phase because it is towards the cytosol. It is also called as cytosol phase क्योंकि ये cytosol या cytoplasm की साइड है इसलिए हम इसे ऐसा कहते हैं. क्लियर? अब हमें देखना है इसके बारे में जो F1 F0 पार्टिकल्स हैं ये कहां पे प्रेजेंट है. दिस इज क्रिस्टी और क्रिस्टा. क्लियर? इस जगह पे पूरी क्रिस्टी के ऊपर हमें F1 F0 पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे. दिस इज द F1 F0 पार्टिकल 1. दिस इज द 2. इस तरह से सब जगह पे प्रेजेंट है ना. वन मोर आई विल ड्रॉ हियर. This is the 3. यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें, these are the F0 F1 particles और ऑक्सीजोम्स. यदि इसको निकाल के हम इस अकेले का स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. दिस इज F0 पार्टिकल. F इज फॉर फर्नांडिस. ठीक है, फर्नांडिस जो साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया था. तो F0 पार्टिकल दिस इज, or it is also called as base of the oxysome. This is the proteinaceous part. It is F5 F6 particle, or it is also called as stalk of the oxysome. This is again a protein particle. It is F1 particle, or it is called as head of oxysome. This head of oxysome contains an enzyme that is called as ATPase. ATPase, or it is also called as ATP synthetase enzyme. Why? Because the synthesis of ATP will takes place here. क्लियर है? तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया एक सिंगल ऑक्सीजोम का. और इस तरह के ऑक्सीजोम्स ऑलमोस्ट 10,000 to 1 lakh of oxysomes are present in single mitochondria. Its number is also depends upon the function of cell. ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में इतने ज्यादा ऑक्सीजोम्स हमारे पास हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ द सेल. क्लियर? ऑक्सीजोम्स का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया अच्छे से. अब हमें देखना है इस ऑक्सीजोम्स के थ्रू बेसिकली जो एनर्जी सिंथेसिस या एटीपी सिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो होती किस तरह से. मैं यहां से कुछ लेबलिंग हटा रही हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए. ठीक है, ये लेबलिंग मैं यहां से हटा देती हूँ. हमें पता है जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रैब्स साइकिल रन करता है और क्रैब्स साइकिल में जो हमारे पास रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स बनते हैं दैट इज NADPH प्लस H+. ये जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम है, these reduced coenzyme will undergo the electron transport chain and produces the ATP. ठीक है, ये पूरा साइकिल जो क्रैब साइकिल है हमारे पास या पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वी विल डिस्कस इन द प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर सेलुलर रेस्पिरेशन. वहां पे हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे. लेकिन फिलहाल हमें देखते हैं यहाँ पे जो NADPH प्लस H+ हमारे पास रिड्यूस्ड कोएंजाइम है ये ऑक्सीडाइज होता है और यहां से दिस इज NADH plus H+. It will gets oxidized to form
NAD plus 2 protons will release and इसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिलीज होते हैं। तो ये काम कहाँ पर होता है? इस मैट्रिक्स वाले इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्रिस्टी है, वहां पे जो मैट्रिक्स पार्ट है वहां पर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स बनेगी ना, इस जगह पे यहाँ पे जो स्पेस प्रेजेंट है, इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन करती है। दिस इज कॉल्ड एज इनर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन करती है और यहाँ पर जो ये प्रोटॉन पार्टिकल्स रिलीज हुए हैं, these proton particles were pumped inside this membrane, this inner जो आउटर कंपार्टमेंट है हमारे पास, ये क्या है? आउटर कंपार्टमेंट। ये क्या है? इनर कंपार्टमेंट। तो इस आउटर कंपार्टमेंट में जो इन पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर ये 2 प्रोटॉन्स एनर्जेटिकली पंप कर दी जाते हैं। दिस इज द एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस है, इट मींस यहाँ पे एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होगा और एटीपी के इन्वॉल्वमेंट से इन पार्टिकल्स को अंदर पंप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये पार्टिकल्स आ गए। नाउ द प्रोटॉन ग्रेडियंट विल डेवलप इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, अब यहाँ पे इस स्पेस में जो प्रोटॉन्स है, इनका नंबर क्या हो गया? ज्यादा। ठीक है, नाउ दीज प्रोटॉन्स विल मूव फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन to low concentration, but this membrane is impermeable to these protons. इस मेम्ब्रेन के आर पार ये प्रोटॉन्स नहीं जा सकते। ठीक है, इनके जाने का सिर्फ एक ही रास्ता हमारे पास है, that is the oxysome. These protons will reach to the head of oxysome. These are energy rich particles. क्योंकि एनर्जी से हमने इसको यहाँ अंदर पंप किया है। These are the very energetic particles. बहुत ज्यादा एनर्जी इनके अंदर है और ये जो एनर्जी इनकी है, इस एनर्जी का यूज करके जब ये ऑक्सीजोम्स के थ्रू इस स्पेस में वापस आते हैं, तो यहाँ पर ADP will combine with inorganic phosphate and the formation of ATP will takes place because the enzyme ATPase is present in the head region. यहाँ पे ATPase एंजाइम प्रेजेंट है। एनर्जी कहाँ से आ रही है? इन प्रोटॉन्स के पास से आ रही है और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं? ATP का मॉलिक्यूल। क्लियर? तो यहाँ पर ATP का क्या हो गया? सिंथेसिस। ATP gets synthesized here. तो इस प्रोसेस के थ्रू हमारे पास ऑक्सीजोम्स जो हैं वो ATPs का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? तो आपको होपफुली ऑक्सीजोम्स का स्ट्रक्चर और वर्किंग मैकेनिज्म समझ में आया होगा। That's why the mitochondria is called as powerhouse of the cell. Now come to the functions of mitochondria. हमें पता है इट इज द पावर हाउस ऑफ सेल, तो एटीपी सिंथेसिस इज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बट अलोंग विद द एटीपी सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो परफॉर्म सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट वन इज एटीपी सिंथेसिस। क्लियर? द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द स्पर्म सेल are called as Nebenкern. These are the mitochondria present in the sperm. Its function is also ATP synthesis. Clear? तो यहाँ पर जो sperm की neck वाला region हमारे पास होता है, वहां पर ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं Nebenкern, and these Nebenкern are helpful in the synthesis of ATP inside the sperm. Secondly, the important function of mitochondria is cytoplasmic inheritance. Cytoplasmic inheritance is also the important function of mitochondria. Now, what is the meaning of cytoplasmic inheritance? हमें पता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एक एग सेल और एक स्पर्म सेल पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज द एग, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस एग एंड दिस इज द स्पर्म, दिस इज द न्यूक्लियस।
क्लियर, दिस इज द स्पर्म। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये स्पर्म इस एग के साथ जाके फ्यूज होगा। Only the nucleus or the head region of the sperm will go inside the egg. It means only the genetic material will come from the sperm. यहाँ पर एग का जेनेटिक मटेरियल और स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल दोनों फ्यूज होते हैं और जाइगोट फॉर्म करते हैं। लेकिन जो बाकी सब कुछ है, बाकी सब कुछ मीन्स जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रियाज भी है, इसमें और भी बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एग सेल तो पूरा कंप्लीट है और स्पर्म सेल से सिर्फ जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। बाकी सारी चीजें कहां से कंट्रीब्यूट हो रही है? एग सेल से। क्लियर? तो ये जो हमारे पास अब यहाँ पे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो और न्यू यंग वन का डेवलपमेंट होगा। उस न्यू यंग वन में साइटोप्लाज्म कहां से आया? साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन कहां से आता है? फीमेल गैमेट से आता है। तो इस तरीके से ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, क्योंकि साइटोप्लाज्म भी तो इनहेरिट होगा, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में कौन हेल्प करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट अनदर मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वाइटेलोजिनेसिस। वाइटेलोजिनेसिस मींस यॉक फॉर्मेशन। एग के अंदर जो यॉक का फॉर्मेशन होता है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और डेवलपिंग एम्ब्रियो को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ एक और सेल ऑर्गेनल दैट इज कॉल्ड एज गोल्गी बॉडी, ये भी पार्टिसिपेट करता है। गोल्गी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया बोथ विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ वाइटेलोजिनेसिस। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में भी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है एंड इन द सिंथेसिस ऑफ मायोग्लोबिन आल्सो। क्लियर? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हम हमेशा से माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन एनर्जी सिंथेसिस के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के एनर्जी सिंथेसिस के अलावा भी और दूसरे फंक्शंस हैं जो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किए। होपफुली आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सब कुछ समझ में आया, कितना नंबर इसका सेल में है, किसने इसकी डिस्कवरी की है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है और ऑक्सीजोम्स का फंक्शन क्या है, किस तरह से ऑक्सीजोम्स में एनर्जी सिंथेसिस की प्रोसेस होती है एंड द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? यदि आपको समझ में नहीं आया है, आप वीडियोस को बार बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्लियर? In our next video we will discuss about the another important cell organelle that is plastid और क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।